Hi everyone, welcome back to another video of mine. So this video is based on this company called KEI Industries, which is a cables and wires company, and the third company in the cables and wires sector, which I'll be discussing here. So in my very first video of the cables and wires space, I had discussed about this whole macro theme on electrification and why cables and wires could become an upcoming booming sector going forward. So you can take a look at that video to understand the whole sector analysis and the macro theme. Uske baad, I had discussed Polycab India and VMark India. And KEI Industries becomes the third company जो I'll be analyzing and talking about today. So KEI Industries का main जो story है, it's not so much dependent on is there any demand for the products or not. Demand will definitely be there as per my macro theme video, but the whole story becomes will KEI Industries be able to execute their plans based on what the management is guiding. So it's all management focused execution based story, and which is what I'll be discussing here. Again, I have done a valuation on this company and keeping in mind into execution plans going forward. So everything which is important for this company is their execution plans, और ये execution plans क्या है, उससे क्या benefit मिलने वाला है कंपनी को, valuations क्या है इस कंपनी की, and what is priced in this valuation, or and what is not. So this is what I'll be discussing here. So let's just start off with the company, and again I'll share a PPT slide so that the flow is maintained and I'm able to speak according to the flow. So yeah, let me share my screen now. Yeah, so let's just move into KEI Industries and इसका एक बार business model को बहुत easily समझ लेते हैं. So KEI Industries, जैसे कि मैंने कहा, is a cables and wires company and makes all your types of cables, low tension, high tension cables, जो high voltage, low voltage वाला जो cables है. Extra high voltage cables भी बनाता है, जिसपे आपको obviously extra high voltage cables is basically the cables जो high voltage आपका यूज कर पाए. सो दैट्स अगेन द केबल्स एंड वायर स्पेस. आपका हाउस वायर्स बनाता है. सो केबल्स एंड वायर्स बना रहा है. एंड देन इनका एक ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी है. ईपीसी प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मैंने हैड डिस्कस्ड इन माय अर्लियर वीडियोस एज वेल, इज अ मच मोर जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे आपको काम करना पड़ता है, जहाँ पे आपको जाके बड़े प्रोजेक्ट्स में यू हैव टू लाइक सेटअप अ होल केबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पूरा जो सेटअप करना पड़ता है. दैट्स द ईपीसी प्रोजेक्ट्स. अगेन इट्स अ वेरी लो मिक्स आता है. And the third is the stainless steel SS wires जो इनका एक space है. That is also again a very low contribution है the revenues पे. So 96% if I would say comes from the cables and wires space, and that's why cables and wires becomes very important for this company. So that's there. The non-core, as I told, EPC and stainless steel becomes the non-core part here. यहाँ पे. And the cables and wires becomes the most important part. So let's just talk about the revenue mix. जो as I said कि cables and wires आपका 96% contribute करता है revenues पे. So the channel mix क्या है in cables and wires का? That means कि ये cables and wires जो KEI Industries बनाती है, ये उसे sell कैसे करती है? So इनका दो channels है जिसके through they sell their cables and wires. The first would be the B2C space, जहाँ पे retailers को sell करते हैं through their dealer and distribution network. Again, what is this B2C space? Is the one जहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉप में जाओगे, जहाँ से आप खरीदते हो वायर्स. दैट्स द डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाला स्पेस. और एक सेकेंड इंस्टीट्यूशनल स्पेस है जहाँ पे आप बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हो, केबल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हो, बड़े कंपनीज जो बिग कॉर्पोरेट्स है वो आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं. सो B2C इज द मोर रिटेल वाला पार्ट, एंड B2 एंड इंस्टीट्यूशनल इज द मोर B2B वाला पार्ट. So B2C, the dealer वाला part contributes around 54% of your cables and wires का sales, और institutional और exports जो है आपका 42% करता है. So again that combines to around 96% आपका आता है कि cables, and 96% of your total revenues comes from cables and wire space. So that's the channel mix. B2C वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है B2C वाला, it has much more higher margins compared to the B2B. रीजन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इस पे.
पहले वाले वीडियोस पे. सो जस्ट थिंक कि B2C इज अ मच मोर हायर मार्जिन वाला सेगमेंट एंड B2B इज अ मोर लोअर मार्जिन वाला सेगमेंट. सो प्रोडक्ट रेवेन्यू भी अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो ये सेल करते हैं वो अपने लो टेंशन वायर्स जो रहते हैं, केबल जो रहते हैं, लो टेंशन केबल्स लोअर मार्जिन वाले होते हैं बिकॉज ऑफ दिस सब आता है कि लोअर वोल्टेज वाले जब आप केबल सेल कर रहे हो तो उस पर आपको मार्जिन भी ज्यादा नहीं मिल पाता. देन द हाउसिंग एंड वाइंडिंग वायर है जो मोस्टली B2C सेगमेंट पे आ जाता है एंड this is a bit of a higher margin from my perspective. HT cable, high tension cables, high voltage cables, again ये sell करता है. It's again on the higher margin side. And EHV cables is again on the higher margin side. EPC और SS wire contributes very low to the revenues, but इसमें एक प्रॉब्लम EPC वाला में एक प्रॉब्लम ये हो जाता है that आप मार्जिन भी कम मिलता है उसमें एंड अनदर फैक्टर इज द रेवेन्यू विजिबिलिटी उसमें कम मिल जाता है क्योंकि दीज आर बिग प्रोजेक्ट्स और कभी प्रोजेक्ट डिलेज हो जा रहे हैं. सो दैट मीन्स आपका रेवेन्यूज भी डिले हो जा रहा है. इट वर्क्स ऑन एन ऑर्डर बुक सिस्टम और any delay in the project would mean delay in your revenue. So margin visibility भी कम होता है. Sorry, revenue visibility भी कम होता है और margin का आपको भी कम मिलता है. So but that's not a big issue इस केस में because इनके जो revenue contributions है that's actually very low for this company. So what we'll be focusing mainly on is all these products. That's the low tension cables, the high tension cables, the EHV cables, and the housing and winding cable wires. So these are the main product revenue and the channel mix. So numbers पे थोड़ी बात कर लेते हैं because again the numbers become important for this company because numbers पे जाएंगे तो we can talk about the volume growth and volume growth से we can like now delve into the whole story कि what's important going forward. So अगर Q4 की बेसिस पे मैं बात करूँ so again good set of numbers Q4 quarterly और आपका full year basis पे भी good set of numbers. So let's just discuss that. Q4 पे your revenues grew by I think 19% YOY and 17% quarterly. EBITDA भी आपका 25% से ग्रो कर रहा है YOY. आपको ऑपरेटिंग मार्जिन मिला है because EBITDA grew higher than your revenues. Then PAT भी आपका 25% से ग्रो कर रहा है. Again leverage वहाँ पे भी मिला. वॉल्यूम्स पे हम लोग आते हैं. विल कम इनटू दैट लेटर. फुल ईयर की बेसिस पे इफ वी टॉक देन देयर रेवेन्यूज इंक्रीज बाय 21%. EBITDA grew by 30%. अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज मिला बिकॉज EBITDA आपका रेवेन्यू से ज्यादा बेटर ग्रो किया. PAT grew by 31% एंड so again वहां पे भी leverage मिला. So let's just talk about the volume. What I'm talking about the volume here is Q4 पे जो इनका जो revenue growth था, revenue is divided in two parts: value growth and volume growth. Value is basically the price का जो price के through आप क्या कितना price में बेच रहे हो और volume is कितना volumes आपने sell किया. So Q4 में their volume growth was around 2% only and full year पे that's single digits पे है again 6.2%. So that's a concern because that just shows कि आपने जो अपना high revenue growth दिखाया around 20% में जो growth दिखाया अपना, that is mostly price related, value related growth which came due to the high volatility in the copper and aluminum prices. जिसकी वजह से आपको प्राइस वाले सेक्टर वैल्यू से आपको ज्यादा ग्रोथ मिला. वॉल्यूम में growth was very minimum single digits पे आपको वॉल्यूम पे ग्रोथ देखने मिला. बट नाउ व्हाट could be the reason कि your volume growth was so muted and so low. So one of the reasons which I particularly think could be the case and हर केबल एंड वायर स्पेस के कंपनीज ने ये चीज बोला है that this is because of the fact that they are all working at peak and full capacity. मतलब their factories are working at full capacity और demand situation is not that bad. Demand आ रहा है but demand इतना ज्यादा आ रहा है कि इनके पास इतनी capacity नहीं है to meet that demand. So that's why you would notice कि पॉलीकैब ने भी अपने कॉन में बोला था कि उनको सिंगल डिजिट्स में वॉल्यूम ग्रोथ मिला. वीक मार्क को भी वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ा इश्यूज हुए देखने में. KEI में भी यही हो रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ इश्यूज. एंड आई थिंक अदर एक दो कंपनीज हैव बीन रीडिंग उसमें भी वॉल्यूम ग्रोथ में इश्यूज हो रहा है. एंड मोस्ट ऑफ द रीजन विच दे आर सेइंग कि ये वॉल्यूम ग्रोथ इतना मिनिमम क्यों है इज बिकॉज ऑफ
because they are already working in full capacity, and or demand meet करने के लिए they don't have that much capacity. So for all these companies, their capex plans becomes very important, because जितना ये capex करेंगे उतना ये capacity expansion के पे जा सकते हैं, and more capacity expansion means that they will be able to sell more and produce more, and जिसकी वजह से they can get the volume growth. So that's why KEI Industries का भी story again becomes their capex plans going forward, and their execution plans कि how they are going to do their capex, वो execute कैसे करेंगे, और कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या है, और वो कैपेसिटी एक्सपैंड करके उनको वॉल्यूम्स में कितना ग्रोथ मिलेगा. So again, this becomes an important part for this whole cables and wire space. Volume growth मिल नहीं रहा है, capacity उतनी है नहीं. So capacity expansion, capex becomes an important part here. So that was the numbers. I guess numbers were very good. Volumes पे देखना जरूरी, and that would be the whole discussion of the video आगे जाके. Next part pay segment growth. If I had to talk dealer and distribution, which is the B2C segment that is growing again 25% से grow कर रहा है, and 29% से quarter पे grow कर रहा है उसने. B2B वाला is थोड़ा subdue हुआ हो रखा है, mainly because it was again due to capacity expansion. अगर आप B2B पे काम करते हैं तो you have to work in bulk. और बल्क ऑर्डर्स आना मीन्स कि आपको कैपेसिटी यूटिलाइज ज्यादा करना पड़ेगा, एंड सिंस दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन पीक कैपेसिटी, आपको वो बल्क ऑर्डर्स को लेने में और बल्क ऑर्डर्स को सप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. सो और शिपिंग इश्यूज भी थे कहीं ना कहीं इनके एक्सपोर्ट्स पे, बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस यूएस ईरान एंड मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से. सो देयर B2B वाला स्पेस में थोड़ा सा हमें ग्रोथ देखने को कम मिला. डोमेस्टिक हाई जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाले जो केबल्स है उस पे वी हैव हैड गुड ग्रोथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, एंड बट एग्जीक्यूशन कैन बी लंपी, और थोड़ा सा एग्जीक्यूशन प्रेशर इसमें आ सकता है, बिकॉज अगेन दीज आर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, और इनके पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं है ये बनाने के लिए. दे आर वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी एक्सपेंशन टू प्रोड्यूस दीज extra high voltage cables, but that would be much more visible from FY28. तो अभी उसके बारे में ज्यादा हम लोग डिस्कस कर नहीं पाएंगे. EPC and cables, SS wire cables, again these are flat रहा है, but these do not contribute that much to the total revenue. So इस पे उतना डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है. So what is important is what is the B2C doing, what is the B2B doing, and I think थोड़ा बहुत extra high voltage, because इस पे ये capacity expansion करने वाला है in the coming 2 years or so. So these are the 3 areas I'll focus on. B2C पे ग्रोथ अगर देखने मिलता है, B2C पे ग्रोथ अगर देखने मिलता है इज वेरी गुड, बिकॉज अगेन हाई मार्जिन आपको, मार्जिन एक्सपेंशन आपको B2C से ज्यादा मिलेगा. EHV पे ग्रोथ देखने मिलेगा अगर, तो इट्स अगेन वेरी गुड, बिकॉज वहां पे भी हाई मार्जिन मिलेगा. बट अगेन EHV पे हम लोग उतना बात करेंगे नहीं, बिकॉज उसका मेन एक्सपेंशन जो आने वाला है वो FY28 के बाद से यू विल बी एबल टू सी. B2B पे भी आई वुड वांट टू वर्क, बिकॉज कहीं ना कहीं इट कैन ऑल्सो allow some revenue growth coming in. So these were the key factors. B2C पे growth देखने मिला is good. So qualities पे उतना बात करते नहीं है, because I would want to like in this particular side I would want to like focus on the capacity utilization bit, because I have already discussed कि इनके ये कंपनी भी अपने full capacity peak capacity पे काम कर रही है, and in their FY25 का जो इनका जो annual report था उसमें भी लिखा है कि दे आर वर्किंग इन पीक कैपेसिटी. इफ यू लुक एट द केबल्स वाला जो कैपेसिटी है 85% पे दे आर वर्किंग. ऑल ऑफ द मेन जो इनका जो काम है, जो केबल्स एंड वायर स्पेस है, वहां पे दे आर वर्किंग अबव 70% के कैपेसिटी पे. अराउंड 80-85 मान के चलो, वो ऑन एवरेज 80-85% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे दिस कंपनी इज वर्किंग. एंड इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आई थिंक 75% पे काम करना वुड मीन कहीं ना कहीं इट्स पीक कैपेसिटी. सो 80-85% पे इफ इट इज वर्किंग ऑन, तो ऑब्वियस सा बात है इट इज वर्किंग ऑन फुल कैपेसिटी. एंड वो कैपेसिटी एक्सपेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिमांड सिनेरियो the whole cables and wire space and electrification is going to boom. So they have to expand. Capex again becomes an important part. So yeah, this is one of the, I think, the most important part of this whole story. There's Sanand capacity expansion story. So currently, if I had to like talk about this particular slide, I would like start off by saying कि इस company के पास 8 manufacturing facilities है in Rajasthan, in Dadar and Nagar Haveli, and in Daman Diu.
तो ये सब मिला के एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एंड ईच एवरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज वर्किंग इन पीक कैपेसिटी, अगेन फुल कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं. So now they are currently working on they are expanding by investing in a greenfield project, Sanand mein, jo ki is in Gujarat. Their Sanand plant is coming up. And they are also expanding by opening up another manufacturing facility in, I think, Chinchpada, jahan se again unke expansion आएंगे. So, but the Sanand capacity becomes their most important project, because most of the growth in volumes जो ये expect कर रहे हैं in FY27 will be coming through the Sanand capacity. The Sanand plant से इनका जो growth आने वाला है, सबसे ज़्यादा growth इधर से ही आएगा. So, the whole story of this company is this particular manufacturing facility. So, ये देखना बहुत important हो जाता है कि यहाँ से इस साल हमें ये देखना होगा कि कंपनी इस पर्टिकुलर प्लांट को ऑपरेशनल करने के लिए इनके एग्जीक्यूशन प्लान्स कैसे जा रहे हैं. दैट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रैक. नाउ व्हाट दे आर पर्टिकुलरली सेइंग इज कि सनाद कैन ऐड 5500 to 6000 crore ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. एज आई टोल्ड, अगेन फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं. कैपेसिटी एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपके वॉल्यूम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ आएंगे. So they are saying that Sanand plant से इनके Sanand वाला जो plant है, जहाँ इनके 5500 to 6000 करोड़ का production capacity पे boost दिख सकता है, and that's around 50% of the revenue base. So that's this supports their view कि this plant becomes the most important execution story for this company, क्योंकि यहीं से उनके main revenues पे growth देखने मिल सकता है. So that's what I think. दो फेजेस में काम हो रहा है, फेज 1 एंड फेज 2. फेज 1 वुड बी ऑपरेशनल, और इसके बेनिफिट्स आपको इसी साल देखने मिलेगा FY27 में. और फेज 2 जो है, आपको उसका बेनिफिट FY28, दैट इज नेक्स्ट ईयर से आपको उसको वो ऑपरेशनल होगा, और उसका बेनिफिट आपको FY28 में देखने मिलेगा. So currently I won't go too much into FY28, but FY27 की बात करें तो phase 1 is the main thing I'll be looking at, and because this would become the highest volume growth driver in the coming in this whole year. So Sanad capacity plant, the plant becomes an important driving source. और phase 2 में अगर बोले तो, as I had spoke about in my last slide, कि EHV वाला जो cables है, that's going to be much more operational in FY28. So that is going to be operational because of this phase 2 plant. Phase 2 में they are expanding into production of EHV. So, but again, that's a target for Q4. That is a target for, I guess, FY28. So उस पे हम लोग उतना आगे नहीं जाएंगे. FY27 पे the target would be the phase 1 plant. So volume growth, and as I told you, volumes पे आपको ज्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिला. सिंगल डिजिट था, उसको एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है. दैट्स वाई वो अभी नया प्लांट चालू कर रहे हैं, द सनाद गुजरात प्लांट, और वहां से दे आर एक्सपेक्टिंग इन FY27 टू बूस्ट देयर रेवेन्यूज. सो दैट्स द होल आई गेस स्टोरी. यहाँ पे भी वॉल्यूम्स पे ज्यादा ग्रोथ नहीं था. मोस्टली इट वॉज अ प्राइस लेड ग्रोथ. कॉपर प्राइसेस 17% से ग्रो किए, एल्यूमिनियम प्राइसेस 9% से ग्रो किए. सो दैट्स द होल क्रक्स बिहाइंड दिस. एंड I have done some revenue growth scenarios, growth projections in this particular slide. और ये growth projections are particularly keeping in mind कि जो इनके जो सनाद प्लांट है, सनाद प्लांट से उनके वॉल्यूम पे कितना ग्रोथ आ सकता है. So as I told you कि जो सनाद प्लांट का phase 1 है, which will get completed by FY27, जो ऑपरेशनल होगा. So the management is guiding कि वो सनाद प्लांट जब ओपन हो जाएगा, उनके वॉल्यूम्स अब सिंगल डिजिट जो 6% से ग्रो कर रहे थे, दैट वॉल्यूम्स विल स्टार्ट ग्रोइंग ग्रोइंग टू 17 and 18%. मतलब 17 to 18% से दे आर एक्सपेक्टिंग FY27 का वॉल्यूम्स ग्रोथ टू हैपन. सो अगर मैंने एक कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट लिया है कि अगर उनका सनाड प्लांट वर्क करता है एज पर व्हाट दे आर सेइंग, दे कैन हैव अ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ अराउंड 17 to 18%. और अगर आई कंसिडर द फैक्ट कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस है वो थोड़े फ्लैट और लोअर पे रहते हैं, बिकॉज इट हैड इंक्रीज अ लॉट इन द लास्ट ईयर, एंड अभी मैं देखूं कि इफ इट स्टेबलाइजेस और मॉडरेट हो जाते हैं इन दिस ईयर, सो उनके जो मेन जो ग्रोथ ड्राइवर हो जाएगा वो वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइवर हो जाएगा, एंड प्राइस लेड ग्रोथ का स्टोरी थोड़ा कम हो जाएगा. सो इफ आई बी कंजर्वेटिव एंड कीप द प्राइजेस फ्लैट,
So I think we can expect an 18 to 20% of revenue growth coming, because 17 to 18% आपका Sanand plant के से आपको boost मिलेगा, and prices are flat. So I'm expecting थोड़ा बहुत coming from a very little benefit coming from prices, and that's why 18 to 20% I think. If I just take a base case scenario where it is stable and mild growth मिलता है आपको prices पे, तो 20 to 23%. And if I am very bullish कि prices will boost a lot, aluminum और copper के prices इस साल बहुत ज़्यादा boost कर सकते हैं. So उस case में I am expecting, I can expect a 25% plus revenue growth. Again, these growth scenarios ये मेरा खुद का है, keeping in mind what could happen. Prices जो है, prices का कोई एक मॉडलिंग करना इज डिफिकल्ट. मैनेजमेंट ने खुद नहीं बताया कि वो प्राइसेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट रेवेन्यू ग्रोथ वॉल्यूम टर्म्स के हिसाब से आई एम एबल टू सी, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 20 to 25% ग्रोथ इन रेवेन्यूज, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनके जो सनांड प्लांट से जो वॉल्यूम ग्रोथ मिलने वाला है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो उसका एग्जीक्यूशन गोज एज प्लान. So that's on the volume growth and the growth scenarios there. कौन aspects, some future guidance जो इन्होंने दिया है, I think I have discussed most of it. FY27 का company volume growth could be around 17 to 18%, as I said कि जो Sanand plant है वहाँ से main growth आ रहा है. I know I'm talking a lot about the Sanand plant, but again that's the main crux of the whole execution story. वो main बन जाता है, वो अगर execute नहीं करोगे तो you won't be seeing anything happening in the company, क्योंकि वही मैनेजमेंट खुद उसी पे ज्यादा फोकस्ड है. So that's the volume growth that could come from the new plants. They are planning to extend their export capabilities to around 20% तक बढ़ाने का they are planning, because US पे थोड़ा सा उनका shutdown हो गया था because of the tariff issues, but अब वो भी continue हो गया है. So that's their plan. And US पे भी they had spoken about how the demand in the data centers US पे बढ़ रहा है, and for that they'll want to supply their cables and wires there. So they want to go into US again. US का and ग्लोबल पे इलेक्ट्रिफिकेशन थीम का क्या चल रहा है, एंड वाई केबल्स एंड वायर्स वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भी मैंने डिस्कस करा अपने मैक्रो थीम वाले वीडियो पे. सो यू कैन टेक अ लुक एट दैट देयर. केपेक्स उन्होंने प्लान करा है कि एनुअली 600 to 700 करोड़ का वो केपेक्स करते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 2-3 years. अगेन दिस केपेक्स विल बी डन फॉर इम्प्रूविंग एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी. So, and they want to fund these capex through the recently एक QIP किया था. QIP से जो पैसे आए हैं कुछ unutilized है, they would use that money for all the capex and their expansion projects जो भी आएगा उस पे they would want to use it. And internal accruals जो cash इनके रह जाते हैं वो भी थोड़े बहुत use करेंगे for their capex. So that's just superficial information here. EPC contribution, like I told, EPC contribution would be good if I could see a decrease in EPC contribution, because again EPC is a low margin business where revenue का visibility कम मिल जाता है, आपको delay हो जाता है revenues, order book बढ़ते रहेंगे, revenues दिखेगा नहीं फिर भी. So I would always want कि भाई EPC वाले में आप थोड़ा सा कम करो, because अगर आपको margin expansion चाहिए तो you will have to definitely move to B2C and B2B. वहां पे आपको थोड़े से बेटर रेवेन्यू एक्सपेंशन मिलेंगे, सॉरी मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा. ऑपरेटिंग मार्जिन, दैट्स द एबिट. अगेन मैं देखूँ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट आफ्टर डेप्रिसिएशन वहां पे दे आर गाइडिंग फॉर 10.5 to 11% का ऑपरेटिंग मार्जिन पे है. एबिडा मार्जिन पे दे आर सेइंग कि एबिडा मार्जिन पे एक्सपेंशन दे विल ओनली बी एबल टू सी नेक्स्ट ईयर से. FY28 पे वो लोग देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग जो फेज 2 वाला है सनांड प्लांट का फेज 2 है, जहाँ पे दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग मोर EHV केबल्स. वहां से दे आर एक्सपेक्टिंग मोर बूस्ट इन एबिडा मार्जिन. सो we won't be able to see much expansion. I feel we won't be able to see much expansion EBITDA margin पे अभी, but next year से operating margin पे we can see some expansion. So operating margin थोड़ा expansion दिखेगा तो EBITDA margin में हल्का दिखेगा, but most of the benefit जो आपको EBITDA margin पे expansion देखना है, that would be from FY28. So that's there. And margin framework, as I had already discussed here, my operating margin versus EBITDA margin.
EBITDA मार्जिन पे अराउंड 0.5% का बूस्ट आपको देखने मिल सकता है लाइकली FY 28 के बाद से rather than this year. And they would they on the EBIT EBIT मार्जिन पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन है इनका उस पे जो ये बेनिफिट देखना चाह रहे हैं दैट कुड इंक्रीज बाय 20 to 25 basis points per year going forward FY 27 से ही. So that's the difference between operating and EBITDA margin. Operating margin, we are talking about the EBIT margin after considering depreciation, and EBITDA margin is before considering depreciation. That's the whole point. And if I had to like talk to you about why we are focusing on EBIT margin, because ये अभी capex mode में है, capex mode में है तो depreciation भी ज्यादा देख रहा है. So we want that benefit. We want to see कि depreciation के हिसाब से इनका मार्जिन क्या हो रहा है और एक डिप्रिसिएशन के बिना इनका मार्जिन क्या हो रहा है. So that's why again some superficial information here. Um, so that's there. सो अगर मैं थोड़े वैल्यूएशन के बारे में बात करूं कंपनी का, एज आई टोल्ड यू कि मैं आई एम एक्सपेक्टिंग टू द कंपनी टू डू अराउंड 20 to 25% ऑफ रेवेन्यूज कीपिंग इन माइंड जो उनका वॉल्यूम ग्रोथ इफ इट एग्जीक्यूट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लान्स. वो उनके जो सनांड प्लांट है उनके अकॉर्डिंग दे एग्जीक्यूट तो 17 to 18% वॉल्यूम ग्रोथ वहां आएगा. एंड प्राइजेस पे आई एम अगेन बीइंग अ बिट मॉडेस्ट इन सिनेरियोज मैंने दिखा दिए थे अपने पिछले स्लाइड में. सो वो सब कंसिडर करके आई एम थिंकिंग अबाउट 20 to 25% ऑफ ग्रोथ इन रेवेन्यूज. सो उसके हिसाब से FY 27 का रेवेन्यूज कुड बी अराउंड 14,000 करोड़. I don't know if it's visible to you or not, but I think it should be. EBITDA margin, जैसे कि मैंने बोला FY 27 में you won't see a big boom in EBITDA margin, but still अगर revenues पे growth मिलता है तो कहीं ना कहीं I'm also considering कि EBITDA margin भी में भी थोड़ा सा minimal boost आपको मिलेगा. So that's again keeping it at 12%. And PAT margin भी मैंने थोड़ा सा कंसिडरिंग रेवेन्यू पे अगर आपको बूस्ट मिलता है तो कंसिडरिंग द पैट की थोड़ा सा बूस्ट आपको पैट पे भी मिलेगा. I have kept it around 8%, which matches current scenario से भी मैच कर रहा है. FY 28 में we'll have to see, but इस केस में I'm considering the fact कि थोड़ा सा बूस्ट हल्का फुल्का मैंने डाला है इसमें. So that's around this FY 27 का पैट मार्जिन. एंड उस बेसिस पे FY 27 का पैट I have has comes out to be around 1100 crore. एंड मार्केट कैप अभी का इज 50,000 एट द टाइम ऑफ जब मैं वीडियो बना रहा था. एंड उस बेसिस पे द फॉरवर्ड पी कम्स आउट टू बी अराउंड 44 टाइम्स. अब ये सब पे भी मैंने एक सिनेरियोस बनाया है, बुल बेस एंड कंजर्वेटिव पे अगेन द ग्रोथ मैंने 18 to 20% के बीच में रखा है रेवेन्यूज का. बेस केस में 20% रखा है एंड बुल केस में 25% रखा है. सो एक रेंज मैंने रखा हुआ है कंसिडरिंग अगेन वो डिलेज हो गए कभी प्लांट पे या कुछ कभी उनको उतना डिमांड मिला नहीं, उतना वो सेल कर नहीं पाए. बट अगेन ऑल द वैल्यूएशंस आर डन कीपिंग इन माइंड की सनांड प्लांट से वो 18% वॉल्यूम ग्रोथ ला पा रहे हैं. तो सो सब सिनेरियोस बना कर के भी आई एम गेटिंग अराउंड अ रेंज ऑफ 40 to 45 times PE. So this might look a bit stretched, 40 to 45 times PE, and for a 25% growth engine looks elevated, of course. But I think the market might be pricing these things. और मेरे हिसाब से ये इतना एलिवेटेड क्यों लग रहा है, बिकॉज नंबर वन एक प्राइज इन हो रहा है कि स्नान प्लांट रैंप अप करेगा FY 27 में, इनके वॉल्यूम ग्रोथ को और रेवेन्यू ग्रोथ में आपको बूस्ट देखने मिलेगा. दैट कुड बी अराउंड वो मटीरियलाइज हो रहा है, प्राइज इन हो रहा है स्नाट से जो आपको ग्रोथ देखने मिला है. दैट कुड बी देयर. एक्सपोर्ट्स भी वो हो सकता है थोड़ा सा प्राइज इन हो रहा है, दैट एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज 20%. दैट शुड गिव सम मार्जिन एक्सपेंशन बूम. डीलर डिस्ट्रीब्यूशन जो सेगमेंट है वो स्ट्रॉन्ग रहता है बिकॉज दे आर नाउ फोकसिंग मोर इनटू B2C और वहां से मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिलता है. अगेन मार्जिन एक्सपेंशन एंड EHP स्टेपिंग अप इन फेज 2 पे जैसे मैंने बोला दे वांट टू लाइक बूस्ट EHP का प्रोडक्शन FY 28 से. सो आई थिंक दीज आर सम फैक्टर्स, ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स जो मार्केट प्राइसिंग कर रहा है. And so it again becomes a real debate of execution. If there is top-notch execution, स्नाट प्लांट एकदम हाई वो एग्जीक्यूट वैसे ही हो रहा है जैसे कंपनी ने कहा. डिमांड सिचुएशन इज गुड, कंपनी इज एबल टू सेल मोर, कैपेसिटी पे एक्सपेंशन दिखा दिया उन्होंने. सो these things would again be very good for the company. And एक केस ये भी हो सकता है that this does not
ramp up as much as the company is expecting, क्योंकि we have already seen Sanad plant पे 6 months का उनका delay हो चुका है. So I would not want any more delays to happen, because कहीं ना कहीं delays happen, कहीं ना कहीं आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ और जो वॉल्यूम्स यू आर एक्सपेक्टिंग, वहां पे गाइडेंस थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा. सो इन द अपकमिंग क्वार्टर्स आई वुड वांट टू सी दीज थिंग्स, पर्टिकुलरली इनका सनाट प्लांट का क्या सिचुएशन है, इनके वॉल्यूम ग्रोथ कैसे हो रहा है, एक्सपोर्ट्स कहाँ जा रहे हैं, आपके मार्जिन एक्सपेंशन, हाई मार्जिन एक्सपेंशन पे जा रहे हो कि नहीं. सो दैट बिकम्स द सेंट्रल क्वेश्चन. कैन सनाट ट्रांसफॉर्म के फ्रॉम अ कैपेसिटी कंस्ट्रेन्ड कंपनी टू अ कैपेसिटी एक्सपेंशन मोड पे ले जा सकता है कि नहीं. And again, what I will look out for going forward, as I have discussed, कि मुझे सनाट का एग्जीक्यूशन देखना है, कैसा हो रहा है, सनाट प्लान से एग्जीक्यूशन आ रहा है कि नहीं, ग्रोथ वहीं से आएगा. वॉल्यूम ग्रोथ देखना है मेरे को, कैसा आने वाला है आगे. एक्सपोर्ट्स देखना है, हाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स इट. मार्जिन ट्रेजेक्टरी, एज आई सेड, अगर अगर कंपनी does these things as planned, FY27 में we could see operating margin पे expansion, and FY28 पे we can see EBITDA margin पे expansion देखने मिलेगा हमें. एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हुए तो अगेन अभी मार्जिन पे बेनिफिट देखने मिलेगा. सम बेसिक वर्किंग कैपिटल, छोटा मोटा चीज आई विल सी. एंड EHV, एज आई सेड, EHV जो FY28 से उनका ऑपरेशनल होगा, अगेन वहाँ वो बेटर होता है तो मार्जिन पे एक्सपेंशन देखने मिल सकता है. सो दीज आर सम पॉइंटर्स दैट आई थिंक I will see in the upcoming quarters. So that was the video on KEI Industries. Again, this the whole story, the crux of this company is their expansion and execution plans. I know video lamba ho gaya, but it was important to discuss what to see in the next quarter. I would want to see their capex plans being intact, and I want to see कि सनाट plant से जो बोल रहे हैं वो benefit आ पा रहा है कि नहीं. So I will have to keep a track of these things going forward, and टू सी अपने कॉन कॉल्स में आगे कंपनी बोल क्या रही है सनाट प्लांट के बारे में, अपने एग्जीक्यूशन प्लान्स के बारे में, मार्जिन के बारे में, वॉल्यूम ग्रोथ क्या हो रही है. बिकॉज अभी आपको प्राइस लेड ग्रोथ देखने मिल रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ कम है. आगे आई विल वांट टू सी वॉल्यूम ग्रोथ में क्या इनका ट्रेजेक्टरी जा रहा है, क्या वो सोच रहे हैं. सो दैट्स ऑल important factors I'll have to keep in mind. So that, I think that was the video on KEI Industries. So um, let me know how was it, and I'll make new videos on the wires and cable space soon. Thank you very much.